میرا پاور ہے. تو جو بھی ایرانی وہاں جاتا تھا وہ احساس کرتا تھا میرا پاور وہاں پہ ہے, وہ میرا مسئلہ حل کرے گا. اور آج جب میں یہ سارے چہرے یہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب بھی جب وہاں جاتے تھے وہ احساس کرتے تھے کہ وہ میرے نیرو ہے. اور یہی چیز ہے جو ان کی فوٹو ایمبلم آف حیدرآباد چار مینار اور ایمبلم آف ایران میدان آزادی دونوں کے بیچ میں ہے, یعنی یہ ان دونوں کو جوائن کر رہے ہیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, صرف ایک چیز اباؤٹ ڈپلومیٹ یہ کہوں گا کہ they say that the diplomat tells you to go to hell in such a way that you actually look forward to the trip. اب آپ دیکھیے جب ہم جاتے تھے کانسلیٹ آفس, وہ تو کبھی یہ ہمیں نہیں کہتے تھے کہ گو ٹو ہیل, ہی آلویز یوز ٹو سے ویلکم ٹو ہیون. تو وہ کتنی خوبصورت انداز میں کہتے تھے. اور جب ہمیں کوئی بھی کام رہتا تھا تو ہم کوئی پرابلم آئے, ایرانی کے لیے آئے یا ہوٹل انڈسٹری کے لیے آئے اور کوئی پرابلم آئے, تو صرف ایک ہی نمبر لگتا تھا SOS, and that was Mr. Ali Akbar Niruman. And as they say, a diplomat, when he says yes, it means maybe. When he says maybe, it means no. And when he says no, he is not a diplomat. In 31 years, Mr. Niruman never said no. So he is 100% diplomat. There is no doubt about it. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, جیسا اس سے پہلے کے مقرر فرمائے تھے کہ 31 گھنٹے مجھے لگیں گے اگر سارے چیز میں کہوں گا, تو مجھے زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں ہے. کہنا تو بہت ہے, لیکن آخر میں یہی چیز کہہ کے جاؤں گا کہ ایک فارسی کا شعر ہے, کہتے ہیں چنین رفتار کن با خوب و بد عرفی کہ بعد از مردنت مسلمان با زمزمت شوید و هندو بسوزاندد. Your treatment with the people should be such that after your death the Muslim should give you a bath with the water of Zamzam and the Hindu should cremate you as his own man. And I am 100% sure that whoever had been in touch with Mr. Niruman, he would always say, he is my man, he is my Niru, my power, my man. And I am sure that these experiences of 31 years he will use for the benefit not only of the Hyderabadis but whole of India as well as Iran, and make this bond between India and Iran, which is already stronger and very, very strong. Best of luck, Mr. Niruman. Thank you. بھائی حسین آپ سے مخاطب تھے. یاوری صاحب نے 31 سال کا یہاں پر ذکر ہوا اور شوکت علی مرزا نے 31 گھنٹے بات کرنے کی کہی تھی, لیکن وہ کہہ نہیں سکے. اور یاوری صاحب نے جو کچھ یہاں کہا, اگر اسے فارسی کے شعر میں سمو دیا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں, ایران و ہند مسکن یک دود مان بدن باشد گواہ ہے من کتب باستان ہند. یک دین و یک تمدن و یک فرہنگ داشتن ہم مردمان ایران ہم مردمان ہند. میں اس تقریب کے انعقاد کے سلسلے میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرنے والے ایک اور میزبان جناب میر ہادی علی بانی امام خمینی ریسرچ لائبریری سے خواہش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. جناب میر ہادی علی. بنا میں خدا ابتدا می کنم. حاضرین کرام, شہ نشین پر تشریف فرما کارگزار صدر اعلیٰ فریاد اور آج کے روح رواں میرے حد دل عزیز دوست جگری دوست جناب آقا اکبر نیرومن اور یہاں پر تمام معززین حضرات اور سامعین حضرات, صرف 2 منٹ کا وقت لیتے ہوئے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بہت ہی مشکلوں سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یقیناً کونسلیٹ جنرل ایران میری نظر میں جب مجھے آغا نیرومن نے عزا خانہ زہرا کی مجلس میں کہا تھا کہ میں اب ریٹائرڈ ہو چکا ہوں اور آپ کو پہلی آپ ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یقین مانیے میرا دل ایک دم بھر آیا اور میں سوچنے لگا کہ ہمارا ایک ایسا اچھا محسن جنہوں نے نہ صرف ایران حکومت کے لیے بلکہ یہاں کے ہندوستانی حیدرآبادی عوام کے لیے بھی جو ایک شاندار تاریخ ساز میڈیٹر کا رول جو ایز اے پی آر او انہوں نے ادا کیا, یقیناً وہ ناقابل فراموش ہے. میں
1985 में जब तेलुगु देशम पार्टी एन टी रामाराव की पार्टी से अपनी सियासत का आगाज़ किया था, उसी वक्त जब मुझे ख्याल आया लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आका इमाम खुमैनी का, जो मैं उनका बचपन से ही एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जब मैंने मेरे भाई हमारे अकबर निरोमन साहब से तस्करा किया था कि मैं हैदराबाद में एक इमाम खुमैनी लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर कायम करना चाहता हूँ, तो चुनाचे आपने मेरी हिम्मत अफजाई की, और ऐसे दौर में उस वक्त के कॉन्सुलेट जनरल के पास नामी गिरामी वाइट कॉलर बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही दाखिला था। कोई फील्ड वर्कर या पार्टी वर्कर वहाँ के दरवाजे खुले नहीं थे। ये एक वाहिद शख्स है जिन्होंने ऐसे मेरे जैसे कई वर्कर्स को और कई आगा के नाम पर, मिशन के नाम पर काम करने वालों को, उनको रास्ता बताते हुए आगे न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काविश और मेहनत और लगन से हमारे अकबर निरोमन ने कॉन्सुलेट जनरल आगा नूरियान आगा रावेश, जो यहाँ पर एक तारीख बना कर गए हैं, यहाँ पर न सिर्फ वो अपनी मियाद मुकम्मिल करें, बल्कि मैं समझता हूँ और 2 साल वो यहाँ पर इजाफा काम किए, और मैं समझता हूँ इस वक्त वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के सफ़ीर भी हैं। वो एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी का नाम आगा रावेश था। उन्होंने मुझे 2004 में वर्ल्ड असेंबली ऑफ ईरान का मेंबर बनाते हुए वहाँ पर तेहरान में कॉन्फ्रेंस को खिताब करने का मौका मुझे अता किया, जिसमें सबसे बड़ा रोल मेरे भाई अकबर निरोमन का ही था, जिन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए जो एक डायनामिक अंदाज पे, यकीनन आप देखते हैं जब हादी अली साइलेंट होता है तो इमाम खुमैनी का शहर में नाम लेवा कोई बढ़कर आगे भी नहीं आता। ये सब कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस को जानना चाहिए, मानना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से अकबर निरोमन ने लेके चला है। बरखिलाफ इसके कॉन्सुलेट जनरल देख रहे हैं आप आज अपने आप को अपने एसी कमरों तक महदूद कर लिए हैं। वो मशद प्रचार कहाँ गया? इमाम खुमैनी के तालीमात और उनके ऊपर जो पहले के कॉन्सुलेट जनरल सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस और दूसरे जगह यूनिवर्सिटी में लेक्चर, हर तरह के काम करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं आज फॉर्मल इस तरह से काम करने से जो बिटवीन इंडिया एंड ईरान जो भी फ्रेंडशिप और जो भी स्टूडेंट्स के दरमियान, जैसा कि अभी मोहतरमा ने कहा कि स्कॉलरशिप की बात ही है, वो स्कॉलरशिप कहाँ गए, वो फारसी क्लासेस कहाँ गए? यही अकबर निरोमन थे फारसी गुस्तान के प्रेसिडेंट रहते हुए आपने कई साल तक हैदराबाद में फारसी की ट्रेनिंग के क्लासेस चलाए, खुद मेरी लाइब्रेरी में फारसी क्लासेस चलते थे। तो इस तरह मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर कहीं भी जॉब करो ईमानदारी ऑनेस्टी से करो। वो एक ऑनेस्ट हमारा एक दोस्त वो अकबर निरोमन साहब थे, जिन्होंने अपनी लगन से न सिर्फ मेहनत रोजगार से काम किया, बल्कि ईरान को भी उस सतह पर लाया और हैदराबादियों को, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि आपको मैं वो बात भी याद दिलाता हूँ। मैं समझता हूँ जब आप बेंगलुरु आगा कॉन्सुलेट जनरल साहब के साथ गए थे, जब पैर का भी आपको एक्सीडेंट हुआ था, यानी इन्होंने अपने जिस्म की भी कुर्बानी दी, अपनी जवानी से लेकर ये आज के पीरियड तक का। तो इस तरह से इनके कई वो है, जिस तरह पेशरो मुखर्रिर ने कहा कि कई घंटों तक नहीं बोल सकते। यकीनन मेरे साथ इतने वाक़यात हुए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आज बहुत वो हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सुलेट और हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट इस वक्त कॉन्सुलेट जनरल हमारे आगा फरियाद मौजूद है, मैं उनसे यहाँ पर कहूँगा कि वो ट्रांसलेट के जरिए ही सही ये मेरी बात को नोट करके ईरान गवर्नमेंट तक पहुंचा है कि आज कौंसल खानों में तमाम एक्टिविटीज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ईरान में इतनी शानदार बिल्डिंग, यहाँ पर पर्शियन क्लासेस चल सकते हैं, यहाँ पर यहाँ के मुखिम ईरानियों के लिए जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बेहतरीन अंदाज की इंग्लिश तालीम हो सकती है। आज पूरा कौंसल खाना वीरान पड़ा हुआ है। इस तरह से वहाँ पर सुधार की जरूरत है। इन चंद बातों से मैं हमारे अकबर निरोमन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बहुत ही मेरे दिल से करीब थे और हमेशा करीब रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। के दाना खाक में मिलकर मूले गुलजार होता है। मैं इस महफिल में मौजूद एक समाजी जहदकार, सियासी क़ायद और जनाब आगाई अली अकबर निरोमन के रफ़ीक जनाब खलीक़ुर रहमान साहब से ख्वाहिश कर रहा हूँ तो तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर अपने तासुरात पेश करें।
जनाब खलीफ रहमान। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौका एक बहुत ही मेरे लिए ख़ास तौर पे जज्बाती भी है, इसलिए कि मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द और ख़ास तौर पे मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जनाब खलील रहमान साहब के इंतहाई करीबी रफ़ीक कह सकता हूँ, और उन्हीं के ज़रिए जब मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र करीब कोई 18-19 बरस की थी, पहली बार मेरी मुलाकात जनाब अकबर नीरुमन साहब से, और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर जनाब चन्ना रेड्डी साहब हुआ करते थे, और लॉन में ईरानी कौंसलेट की एक फंक्शन था, तो मैं वालिद मोहतरम के साथ उस फंक्शन में गया और मैं देखता रह गया उस वक्त, क्योंकि एक तो बचपने से हम जवानी में दाखिल हो रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन मेरी जो थी, नज़र सिर्फ एक शख्स पे वहाँ पे टिकी हुई थी, और इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उनको घूमते पा रहा था, और वो शख्स थे जनाब अकबर नीरुमन साहब। जो फुर्ती थी उनमें और जिस इखलास के साथ हर एक से मिल रहे थे और जिस तरीके से सबको खुशामदीद कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि जो पहला इम्प्रेशन जो मेरा रहा है, उसके बाद कई बार मैं समझता हूँ कि हज़ारों बार मेरी मुलाकात जनाब अकबर नीरुमन साहब से हुई, और जब कभी भी मुलाकात होती थी तो वही अंदाज़ उनका जो मुखलिसाना हमदर्दी के साथ और मोहसिन नियत का जो अंदाज़ रहा, वो मैं समझता हूँ कि मेरी शख्सियत पे एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन छोड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे जनाब नीरुमन साहब की जो खिदमत ख़ास तौर पे हैदराबाद में रही है, मुझे मुश्किल है कि उनका निमुल बदल फिर से यहाँ पे ईरानी कौंसलेट को मिलेगा। और एक चीज़ में मैं यहाँ पे खैर वक्त नहीं है, मगर मेरे जज्बात को मैं कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जनाब अकबर नीरुमन साहब भी उसी साने से गुजरे जिस साने से मैं चंद बरस पहले गुजरा हूँ, और उस वक्त मैं हैदराबाद में नहीं था, मगर जैसे मुझे खबर मिली मैं हैदराबाद आया, और आपके घर जब गया तो हालांकि ऐसी कैफियत थी, उसके बावजूद भी समझिए आप वो अपने आप को थामे हुए थे, और फिर मैंने देखा कि उसके एक हफ्ते के बाद वापस फिर वो अपनी जो ड्यूटीज़ थे, जो फ़राइज़ थे कौंसलेट में, वो अंजाम देने के लिए कौंसलेट ज्वाइन कर लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, और जो दर्द जो खिदमत का मैंने उनमें पाया है, शायद बहुत कम लोगों में हमें मिलता है। और जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि ये डिप्लोमेट बिल्कुल ही नहीं है, समझिए आप मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी भी इनमें मैंने डिप्लोमेसी नहीं पाई, बल्कि हमेशा एक सच्चाई और सादगी मैंने इनमें पाई है, जो डिप्लोमेट्स में अक्सर नहीं पाई जाती, समझिए आप। चीन चंद अल्फाज के साथ मैं आपकी जो खिदमत है, क्योंकि उसको तो मैं समझता हूँ कि हम खराज अक़ीदत कभी भी नहीं अदा कर सकते हैं, इसलिए कि 31 साल की जो उनकी खिदमत रही है ख़ास तौर पे हैदराबाद में, वो अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके हर साल का एक बाब अगर आप बनाए तो 31 बाब पे किताब लिखी जा सकती है। और मैं जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तरफ तवज्जो फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल उस किताब की रस्म इजरा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम अंजाम देंगे। और डाइस पे तशरीफ़ फरमा तमाम साहिबान का मैं शुक्रिया। जनाब खलील रहमान साहब अपने तासुरात पेश कर रहे थे। उन्होंने यहाँ अपने जवां साल फर्जंद और आखाई अली अकबर नीरुमन के जवां साल फर्जंद की रहलत का यहाँ पर जिक्र किया। यकीनन वो लम्हा हम सबको याद है, 2012 में ये सामने हुआ था। बहरहाल मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
انہوں نے یہاں پر جو تجویز پیش کی، جو خراج تحسین پیش کرنے کی بات خلیق الرحمن صاحب نے پیش کی، یقیناً ہم سب آپ کے اس مشورے میں شریک ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ آغائی علی اکبر نرومن کے سلسلے میں، ان کی خدمات کے سلسلے میں، لیکن ان کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کام چھوڑا ہے، کہیں نام نہیں چھوڑا ہے. وہ خاموش خدمت گزار تھے، صلے اور ستائش کی تمنا سے بے نیاز تھے، اور جو کچھ کرتے وہ جس طرح سے بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے، وہ بند مٹھی سے مدد کرتے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. بہرحال میں ایک اور اس تقریب کے مہمان مخرر جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد جناب عزیز احمد سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کم و بیش 3 دہائیوں پر مشتمل آغائی علی اکبر نرومن کے ساتھ اپنے تاثرات کا، خیالات کا اظہار کریں. جناب عزیز احمد. قابل احترام صدر محفل جناب ڈاکٹر جاوید صاحب، واجب تعظیم مہمانان ذی وقار، کارگزار قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران، حجت الاسلام مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ، شہ نشین پر تشریف فرما معزز مہمان اور آج کی اس محفل کے نوشہ میرے دوست علی اکبر نرومن صاحب، معزز حاضرین، سب سے پہلے میں اپنے